वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट कॉर्पोरेट रडार और हम बातचीत कर रहे हैं ब्लू स्टार के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बी त्यागराजन से। मिस्टर त्यागराजन, अब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि 74 इयर्स सक्सेसफुली पूरे हो गए हैं अब कंपनी के, अब आगे की रणनीति क्या है? हमें यह पता है कि $1 बिलियन के रेवेन्यू का आपका टारगेट है 2020 का, उसे अचीव करने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? वी ऑल्सो नो कि आपने इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी अभी फोरे किया है। हाउ इज दिस गोइंग टू पैन आउट एंड व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी डू यू हैव फ्रॉम दिस सेगमेंट? Thank you. We are excited about the beginning of the Platinum Jubilee year. So as we had stated earlier, we will stay focused on the core businesses of air conditioning and refrigeration and the electromechanical projects business, contracting business it is, and the Blue Star Engineering and Electronics, which handles the electronics and system integration business in many areas. We will look at certain adjacencies we had mentioned. So we have taken off well in air coolers, air purifiers. So similarly in the electromechanical project space, we are now the #1 MEP contractor, which is mechanical, electrical, plumbing. We don't do only air conditioning. We are also into electrical. We are also into plumbing services. This business is beginning to show some revival. Our order book is good, order intake is good, and the construction segment has not opened up, but it is relatively better than last year. Going forward, I think this business has the potential to grow tremendously once the construction cycle opens up. In service, we offer many products, annual maintenance contract, for example, spare parts, energy management, air management, but it was confined to air conditioning and refrigeration. Today, people begin to outsource their other services like electrical or plumbing and all the engineering facilities. The market size for the hard services like this, other than catering, gardening and upkeep, is around 1,500 crores. Okay. So it is a sizable market, and we are one of the leading players there with the special skills actually. So we target in about 3 years time we should reach somewhere around 100 crores turnover. Okay. This year we should be doing somewhere around 35 crores or so. So stay focused on core businesses and adjacencies. The new water purifier business grow aggressively. With this, I think our ambitions will be met. All right. Thanks very much, Mr. Thiagarajan, for sharing all this information with us and joining us on this very special day. All the very best for the next few years and for attaining your achieve the target that you have set for yourself. Thanks very much for joining us. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बता देते हैं कि ICICI लोम्बार्ड की आज लिस्टिंग हुई है, कमजोर लिस्टिंग हुई है, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग के बाद शेयर लुढ़का भी है, लेकिन बाद में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी भी देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के MD और CEO भार्गव दासगुप्ता ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। साथ है ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO भार्गव दासगुप्ता। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, देश की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे आप आज लिस्ट हो गए हैं। लेकिन ये चीज़ समझना चाहूँगा, जो लिस्टिंग हुई है थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, तो क्या जो वैल्यूएशन की दिक्कत आ गई, कि प्राइस जो था वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस था, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लगा, या फिर क्या वजह रही? देखिए, मार्केट में क्या प्राइस मिलता है वो तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं इतना बोलूँगा कि व्हेन वी वेंट आउट टू द मार्केट। ऑलराइट, तो अभी आप सुन रहे थे ICICI लोम्बार्ड के MD को। आज जो लिस्टिंग हुई है थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन डेफिनेटली आउटलुक काफी स्ट्रांग है और पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी आज लिस्ट होते हुए हमने देखी बाजार में। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट्स में भी थोड़ा सबड्यूड एक्शन ही देखने को मिल रहा है। 9818 के लेवल्स पर अब निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आज है गूगल का जन्मदिन। चलिए, और हर दिन हम जो सबसे पहले लॉगिन करते हैं वो गूगल होता है और आज गूगल का 19वां जन्मदिन है। किस तरीके से ये 19 साल रहे हैं गूगल के, वो बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े लेकर आए हैं संदीप हमारे साथ। बताइए संदीप।
साक्षी, गूगल पे हम लॉगिन करते हैं, इनफैक्ट पहली स्क्रीन होती है, लेकिन आपकी मैं स्क्रीन देखता हूँ कई बार जब आप बैठती हैं कंप्यूटर पे तो कई सारी स्क्रीन खुली होती है, तो आपके पास तो कई सारे गूगल्स होते हैं। शुरुआत गूगल से होती है और फिर हम पैन आउट करते हैं। आज 19 साल गूगल के पूरे, मुझे लगता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर 19 स्क्रीन तो खुली होती हैं, उसमें जो टैब्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आज आप तो इसे सेलिब्रेट करेंगे, या कोई केक वेक मंगाने का प्लान है आपका? एब्सोल्युटली, वी शुड सेलिब्रेट बिकॉज अभी जो सब हम लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ गई है गूगल के ऊपर, वी ऑल शुड कट अ केक साइमल्टेनियसली। मुझे लगता है 3:30 के बाद अच्छा खासा सेलिब्रेशन होना चाहिए। चलिए कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं गूगल का, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो चलिए गूगल की कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। 1998 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी गूगल इनकॉर्पोरेट के तौर पे, और देखिए जो सफर है वो 19 साल का रहा है इस कंपनी का, और बेहद शानदार सफर इस कंपनी ने पूरा किया है। जो लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की वो 2004 में हुई थी, और आपको बताएं साक्षी, जो प्राइस था, जो लिस्टिंग का प्राइस था वो $85 प्रति शेयर का था, और आज आप गूगल का भाव देखिए $900 के पार पहुंच चुका है। यानी कि बीते अगर आप 13 साल का ही सफर देखें तो गूगल ने अपने जो शेयर धारक हैं उनको मालो माल किया है। तो हम और आप सेलिब्रेट करें ना करें, लेकिन इनके जो निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास तो रिजॉइस करने का काफी अच्छा मौका है। 1000% से ज्यादा, यानी कि 11 गुना से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। ₹85 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ था, और आज जो भाव है ₹937.40 के आसपास का है, यानी कि 11 गुना से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी अपने निवेशकों को डिलीवर कर चुका है। इनफैक्ट इसके आप फाइनेंशियल्स देखिए, जो वित्तीय हालात है इसकी, वो अपने आप में बयां करती है कि कितनी स्ट्रांग कंपनी है ये। देखिए इसकी जो मार्केट कैप है वो करीब $64,500 करोड़ के आसपास की है। अच्छा खासा कैश है, करीब $9,500 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। एक मिनिमम डेट का फिगर अगर आप देखिए 300-400 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, जो कि ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के एनुअल रेवेन्यू से कंपनी कमाती है, 60% के आसपास के मार्जिन है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा FY17 ने इस कंपनी ने क्लॉक किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बेहद शानदार कंपनी, अच्छे रिटर्न्स, और 19 साल पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भर में इसका जश्न जरूर देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, और जिसके पास हर एक चीज का जवाब होता है, उसका अगर बर्थडे इतने शानदार तरीके से ना मने तो बात ही क्या है। शुक्रिया संदीप आपका ये इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने करने के लिए। चलिए लेकिन खत्म करते हैं मार्केट एट नून को यहीं। मैं लेती हूँ इजाजत। ब्रेक के बाद आप देखिए सुपरफास्ट फ्यूचर्स। नमस्कार।